میری شادی کی پہلی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا، وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ کچھ نہ بولا اور جائے نماز بچھا کر ساروں کی طرح رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا کہ صبح کھولنا۔ صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی۔ شادی ہوتی ہی میں گاؤں میں 4 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک پڑھی لکھی ایم اے پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہ تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر اشفاق جب میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھائی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے بتی سی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی مل گئی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل، گوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ تھا بھی ذرا سانولا سا۔ اس کے آگے کے 2 دانت بھی ذرا سے باہر کو تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھڑی بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میری پھوپھو کے بیٹے سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا خاصا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوش کا دار و مدار اچھے نیک اور کماؤ کی حد تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرا دماغ منفی سوچوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اشفاق پر اپنے اندر کی ساری بڑھاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دکے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے لائبہ، کیا تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے لینے نہیں دی؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کے بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی، اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو میں صبر شاید کر جاتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میری یہ باتیں سن کر وہ تعجب سے میرے پاس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، لائبہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہونا۔ میں نے کہا، اس میں حیران اور پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں سے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد فون نمبر، باقی کی محبت فون پر پروان چڑھتی رہی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب اشفاق واش روم سے باہر آیا۔ آنکھیں بھیگی سی تھی، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے اس سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں پر چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر پہنچتا۔ اس کی مٹی اور کھاد سے گندم کپڑے، چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی ڈوبنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری وہ بھانپ کر کمرے میں چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گے۔ اشفاق کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا۔ چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی تھی۔ اشفاق شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا
कि वो सुबह को गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक एक करके वापस लौटता है और रोटी भी उसे पेट भर के नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अब अधूरी रह जानी ख्वाहिशात पर हर वक्त कलक रहने लगा था। मुझे बार बार हसन का ख्याल आने लगता। मेरे पास जो फोन था वो मेरी वालदा ने वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज तर्क करके इशफाक से कहा कि वो मुझे अपना फोन दे दे, मुझे हसन से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी अरूज पर थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर हसन का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। हसन भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने उसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। अशफाक की मौजूदगी का मुझे कोई पास ना था। वो खामोशी से चादर बिछाए जमीन पर लेट गया। मैं काफी देर हसन से बात करती रही, फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। रोज मैं इशफाक से फोन लेती और हसन से बातें करती रहती। हसन मुझे अभी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। इशफाक सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सेहन में आ गई थी ताकि मैं हसन से बातचीत कर सकूं। सेहन में कोई नहीं सोता था, सब अपने अपने कमरों में ही सोते थे। मैं सेहन में खड़ी होकर हसन से बात करने लगी, लेकिन एकदम मुझसे किसी ने फोन छीन लिया। मैंने पीछे देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शोहर के होते हुए भी यार पाल रखे हैं। ना जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सेहन में जमा हो चुके थे। अशफाक भी आंखें मसलता हुआ सेहन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या रात को शोर मचा रखा है? अशफाक ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान व परेशान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर हसन से शादी कर लूंगी। लेकिन अशफाक ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है कि वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और वो मेरी इजाजत से करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया या उसके पाकीज़ा किरदार पर उंगली भी उठाई तो चंद जुमलों में वो सबको समझा चुका था। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में जाकर लड़ने झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर इतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ और मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी हसन से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी हैं। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी। मैं गुस्से से उसे कहे चले जा रही थी। वो कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इंतजाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि कोई तुम पर उंगली न उठा सके। 2-3 दिन में मैं तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इंतजाम लेकर तुम्हें उनके घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भेज दूंगा। इशफाक की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हो गई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, लेकिन बिल्कुल अंगूठा छाप था। लेकिन हाँ, इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने से लग गए थे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और हसन को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया था। कहने लगा, तुम शहर में आ जाओ और अपने कजन से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें भी अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन के बाद ही मैं इशफाक के साथ शहर चली गई थी। हसन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर मैंने इशफाक से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं हसन से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई करूंगा। कल तक इस एड्रेस में तुम्हें तलाक भी भेज दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा हसन नहीं खोला था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हुई, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली सेहन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा, अंदर तो आओ, बताता हूँ। मैं उसके हमरा अंदर कमरे तक चली गई। कमरे में 4 मर्द और भी मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी से हंसने लगे। इनमें से एक ने कहा, माल तो अच्छा खासा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। हसन मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चकरा कर रह गई थी। इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर
धकेल कर कमरा बंद करता। मैंने बर वक्त अपना दिमाग चलाया और हसन को धक्का देकर बाहर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो सब मेरा पीछा करने लगे। इशफाक भी अब इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास जा पहुंची थी। मेरे पीछे उस वक्त वो मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी काफी सुनसान थी। जहां हसन ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी अशफाक के पीछे जा छुपी थी। वो मर्द वहां तक पहुंच गए थे। अशफाक से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया था। बदले में वो लोग भी उसको मारने पीटने लगे। एक शोर सा मच गया। कुछ देर में लोगों का हजूम सा लग गया था। खुदा की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस भी गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से इनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया था। अशफाक के होंठ जख्मी हो चुके थे। पहली बार मुझे उसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने की काबिल भी नहीं रही थी। मुझे अपना आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा था। वो मुझसे पूछने लगा कि लाइबा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। मैं उसके ज़र्फ के सामने रेजा रेजा होकर रह गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं अपनी कम अकली से कांच की चमक दमक देकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बर वक्त बच गई थी। इशफाक ने मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने इशफाक को जख्म देकर फिक्रमंदी से पूछा, अशफाक तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था। देवर ने इशफाक को जख्म देकर फिक्रमंदी से पूछा, अशफाक तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई है। मैं अंदर बहुत पछता रही थी। मैंने अपने शोहर को बज़ाहिर देखकर उसे क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक बहलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजरें ही नहीं मिला पाई थी। अपने अंदर खुद को मलामत करती रहती थी। वो अभी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उससे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते हैं? हर रोज आधी रोटी खाकर उठकर चले जाते हैं। मेरी बात पर इशफाक ने मुझे हैरत से देखा था, फिर उठकर नहीं गया। चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए शोहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। रात को वो देर से कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, इशफाक मुझे माफ कर दें, खुदारा मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली गई। मैं रोते हुए अपनी गलती का इतराफ कर रही थी, लेकिन वह भी खामोश था, कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अब तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा अब वो जरूर मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो न जाने क्यों मुझे टिकटी बांधे देखे चले जा रहा था। मैंने कहा, इशफाक कुछ तो कहो, चुप क्यों हो? मुझे डांट लो, अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, लेकिन खुदारा मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन उसकी चुप वही थी, वो नहीं टूटी थी। हमारी शादी को इतने माह बीत गए थे। शादी के बाद जो चुप का ताला उसने अपने होठों पर लगाया, वो मेरी मिन्नत समाजत और रोना धोना पे भी खुल ना सका। वो मुझे खाली आंखों से देख रहा था, चुपचाप लेट गया। सुबह चंद कागजात मेरे हाथों में थमा दिए। मुझ पर तो गोया आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। कहने लगी, इशफाक मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने बिलखने लगी थी। कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से निकल गया था। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के दिल में उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उससे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। ये शायद मर्द सब कुछ सह जाता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात हाथ में लिए फूट फूट कर रोती रह गई थी। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं वो कागज पढ़ूं। मैंने सोच लिया था कि रात को इशफाक के पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक हरगिज नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पाँव में बैठ गई, गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर खड़ा किया। कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती। फिर दराज से निकाल कर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे तो वो जमीन के कुछ कागजात थे। जहाँ वो हल चलाता था अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने उसे हैरत भरी नजरों से देखा।
कहा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, इशफाक ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। इशफाक ने मेरे लाख मना करने पर भी मुझसे साइन करवा लिए थे। अगले रोज वो शहर चला गया। 10 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया था। वो वापस आया तो लेकिन घर में कराह सा मच गया था। शहर से इशफाक की मैयत गाँव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उछट गई थी। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसने बताया कि 3 माह पहले ही इशफाक को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। न जाने पिछले उसे कौन सा ऐसा गम खाए चले जा रहा था जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन के बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मेरी सास ने दे दिया। कहने लगी, लाइबा ये इशफाक के दोस्त ने दिया है। कह रहा था इशफाक ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा, फूफो इशफाक तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? फूफो मुझे ताज्जुब से देखने लगी। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि इशफाक अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और 14 जमातें प्राइवेट पढ़ी हुई थी। साथ ही अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा था कि फूफो के सब बच्चे अनपढ़ है। वो कहने लगी, तो मैं इशफाक बचपन से चाहता था। कहता, अम्मा लाइबा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो उसे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि उसका शोहर अनपढ़ गवार है। मुझ पर ये इंकशाफ किसी हथौड़े की तरह से लग रहे थे। आज तक मुझे इशफाक ने ये नहीं जताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। लाइबा, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है। जरूरी भी फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाली थी अपनी माँ को यही कहते सुना था कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की कौंपलें बचपन ही से फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही मेरी मोहब्बत भी परवाह चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक तना आवर दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे जब भी अम्मा ये कहती कि लाइबा पढ़ लिख रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि उसको खाने में ये सब पसंद है, मुझे भी वही चीज खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है। हर हालात का डट कर मुकाबला किया करता था, लेकिन उस दिन तो टूट के रह गया था। मर्द सब कुछ सह जाता है, लेकिन अगर शादी की पहली रात लड़की ये कह दे कि वो शोहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शोहर का मान इतबार चिकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत बहुत की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती थी, ऐसी बातें जिस पर शोहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया मुझे पता ही ना चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी कि कहीं मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आजाद हो लाइबा, तुम आजाद हो। पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसलिए कब्र तक मेरे साथ आई। खत पढ़ते हुए मैं सारों की तार रोए चली जा रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा, क्यों नहीं। मेरी बेवफाई ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई। कहने लगी, ऐसा क्या लिख दिया था उसने? मैं क्या जवाब देती, मैं क्या कहती, मैंने क्या किया था, मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं खाली और तहा दामन रह गई थी। मैं रोते हुए खुद कलाम थी, काश इशफाक तुम्हारी जगह मैं मर जाती। इशफाक, तुमने मुझ जैसे खुद गर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश के तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू ना रुक रहे थे। वो एक इशफाक मुझसे निभाकर मनो मिट्टी तले जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है और मैं अब इशफाक की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत इसके मरने के बाद की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक तन आवर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर मजबूती से जगड़ चुकी थी। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अभी यही लगता है कि इशफाक को मरे बस चंद घंटे ही हुए हैं। मैंने उसका खत पढ़कर रखा है, इसलिए मेरे अंदर की दुनिया तक सिमट सी गई थी। मेरा जख्म आज भी हरा भरा है। मेरे दुख में कभी भी कमी नहीं आ सकती। मेरी इन सब लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शौहर का
حقارت سے دیکھتی ہیں کہ خدارا اپنے شوہر کی قدر کرے۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیاہ کر لے جائے، کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کی یہ بات میں پہلے سمجھی ہوتی تو شاید اشفاق آج بھی زندہ ہوتا۔ اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیل۔